Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video, we are going to solve questions related to Pythagoras theorem. Let's revise Pythagoras theorem first. Pythagoras theorem is applied on right triangles in which we have one base, another is considered as perpendicular, and the longest side opposite to 90-degree angle is called the hypotenuse, right? So our theorem is hypotenuse square equals to base square plus perpendicular square. So अगर हमारे पास let's now read out question number 1. Verify that the triangle having the following measure of the sides are right angled. उसने कहा है कि ये ट्राइंगल की 3 साइड की लेंथ गिवन है. वेरीफाई करें कि ये तीनों रिप्रेजेंट कर रही हैं राइट एंगल ट्राइंगल को. हम इन तीनों लेंथ्स के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाता है तो दिस मीन्स कि ये जो तीनों मेजरमेंट्स हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल की हैं. राइट पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमारे पास हाइपोटेन्यूज होना ज़रूरी है. सिंस वी नो दैट हाइपोटेन्यूज इज़ द लॉन्गेस्ट साइड, सो हम इन तीनों लेंथ में से लॉन्गेस्ट जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं. सो सी इज़ कंसिडर टू बी एज द लॉन्गेस्ट साइड. सो हम सी लॉन्गेस्ट साइड कंसिडर कर लेते हैं और बाकी दोनों साइड जो हैं वो आपके पास ए और बी बन जाएगी. So now we will apply Pythagoras theorem, which is hypotenuse square equals to base square plus perpendicular square. So hypotenuse here is C, base here is A square, and perpendicular here is B square. So we'll just apply the insert the values. Instead of C, we'll write 13 square, then A 5 ka square, then B 12 ka square. So 13 square means 13 into 13, 169. 5 square means 25 and 12 square means 144. If you add the two numbers, you'll get 169. So as left hand side is equal to right hand side, इसका मतलब है कि ये जो तीनों measurements हैं ये right angle triangle को ही represent कर रही हैं. Let's solve another sum. Second part. Here A is equal to 1.5 centimeter, B equals 2 centimeter and C equals 2.5 centimeter. So again we'll identify the longest side. Here the longest side is C again, which is 2.5. So our theorem becomes hypotenuse square equals to base square plus perpendicular square. So instead of hypotenuse, we'll just write 2.5 ka square, base 1.5 square, perpendicular 2 square. We'll just do the calculations. It will become 6.25 and 2.25 plus 4. When you add the two digits, it will become 6.25. So इन क्वेश्चंस में जब भी आपको 3 मेजरमेंट्स गिवन होंगी, आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेना है कि लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है और फिर उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देना है. लेट्स सॉल्व वन मोर सम. The third part, A here is equal to 9 centimeter, B here is 12 centimeter and C here is 15 centimeter. So first of all we have to identify the longest side, which is C 15 centimeter. तो हमारे पास right angle triangle कैसे बनेगा? This is C, this is A, this is B. So C square is equal to A square plus B square. So hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. हाइपोटेन्यूज की जगह उसकी वैल्यू लगा देते हैं. बेस इज़ 9 एंड परपेंडिकुलर इज़ 12. इनको स्क्वेयर्स लें, ऐड करें. 15 स्क्वेयर इज़ 225, 9 स्क्वेयर इज़ 81, 12 स्क्वेयर इज़ 144. व्हेन यू ऐड द टू डिजिट्स यू विल गेट 225. सो दिस मीन्स ये जो तीनों मेजरमेंट्स हैं ये भी राइट एंगल ट्राइंगल की ही हैं. लेट्स सॉल्व वन मोर पार्ट. Fourth part of the same sum. So A is equal to 16 centimeter, B is equal to 30 centimeter and C is equal to 34 centimeter. So इन तीनों में से आइडेंटिफाई कर लें लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है. वो ऑटोमेटिकली हमारे पास हाइपोटेन्यूज बन जाएगी. सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. ऑन द रिमेनिंग साइड्स विल बिकम बेस एंड परपेंडिकुलर. सो 34 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर. You just have to do the calculations now.
when you add the two digits, so it will satisfy the equation. This means कि जो तीनों measurements given हैं ट्राइंगल की ही हैं, लेकिन वो कौन से ट्राइंगल की हैं? राइट एंगल ट्राइंगल की हैं. क्यों? क्योंकि उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर दिया है. So I hope you understand the sum. Let's move forward to question number 2. Question number 2. Verify that a square plus b square, a square minus b square and 2ab are the measure of the sides of a right angle triangle where a and b are any two real numbers and a is greater than b. तो अब उसने हमारे पास ये तीन मेजरमेंट्स बताई हैं और उसने कहा है वेरीफाई करें कि ये राइट एंगल ट्राइंगल की हैं या नहीं. तो हमारे पास क्या है? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एक मेजरमेंट है, दूसरी साइड की लेंथ ये है और तीसरी साइड हमारे पास है 2ab. सो फॉर वेरीफाइंग कि वेदर दीज थ्री लेंथ शोज राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट, उसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा. पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमारे पास है ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर. तो ए स्क्वेयर इज़ द हाइपोटेन्यूज विच इज़ द लॉन्गेस्ट साइड. तो इन तीनों में से पहले हमें लॉन्गेस्ट साइड देखनी पड़ेगी कि कौन सी है. सो पहले तो ये देखें ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर जो सेंटर वाली है ये डिफरेंस है. जब दो नंबर्स का डिफरेंस देंगे तो ऑब्वियसली वो काम हो जाएगा. सो अब हमने कंपैरिजन करना है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का और 2ab का. उसने कहा है कि ए और बी कोई से भी नंबर्स हो सकते हैं, तो और उसने कंडीशन लगाई है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी. राइट, अपेरेंटली नज़र आ रहा है कि स्क्वेयर करें और सम करें तो वो बड़ा आएगा, लेकिन वेरीफाई फिर भी कर लेते हैं कि ए इज़ ग्रेटर देन बी. लेट से ए इज़ ग्रेटर देन बी है, ए की हम वैल्यू 2 ले लेते हैं, बी की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं. तो 2 इज़ ग्रेटर देन 1 और इनके अंदर वैल्यूज अप्लाई कर दें. अगर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ए का स्क्वेयर 2 का स्क्वेयर लें और बी मीन्स 1 का स्क्वेयर लें, 4 + 1 ये आ जाता है 5. दूसरी साइड को देख लें तो 2ab, इसको देख लीजिए 2 तो एज इट इज़ आ जाएगा, ए की जगह 2 और बी की जगह 1 डाल लें तो ये 4 आ जाता है. दिस मीन्स जो सबसे बड़ी साइड है, लॉन्गेस्ट साइड है, वो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर है. अब ये जो तीन वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं ये हम पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट के अंदर इंसर्ट कर देते हैं. ठीक है, सो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है और ये जो होल स्क्वेयर है ये फार्मूले का है. सिमिलरली बेस की वैल्यू इंसर्ट करते हैं, दैट इज़ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर और ये जो होल स्क्वेयर है ये फार्मूले का है. पी 2ab है परपेंडिकुलर और इसके ऊपर जो होल स्क्वेयर है वो फार्मूले का है. अब हमने क्या करना है, वी जस्ट सिंपली हैव टू ओपन दी होल स्क्वेयर्स. अगर आप और से देखें तो ये जो होल स्क्वेयर हैं दीज आर एक्चुअली द फर्स्ट एंड द सेकंड अलजेब्रिक आइडेंटिटी. फर्स्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटी हमारे पास क्या थी, रिकॉल कर लें, ए प्लस बी होल स्क्वेयर. सो उसमें होता क्या है, ए स्क्वेयर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वेयर. सो यहाँ पे आपके पास ए की वैल्यू लग जाती है, यहाँ पे बी की और 2ab आ जाता है. सो इट इज़ एक्चुअली ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर. सो यहाँ पे जब हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर. राइट, सो अगर आप ये देखें तो ए की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर और 2a स्क्वेयर बी स्क्वेयर. सिमिलरली ये जो राइट हैंड साइड पे ये हमारे पास सेकंड अलजेब्रिक आइडेंटिटी है. सेकंड अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपके पास क्या है, ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर. राइट, तो ये ए स्क्वेयर की जगह ए आ जाएगा ए स्क्वेयर एंड देन बी स्क्वेयर की जगह ये और ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर. और जो ये वाली चीज़ है इसका जब होल स्क्वेयर ओपन करेंगे, ए स्क्वेयर जब 2 पे जाएगा 4 बन जाएगा और ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर. राइट, अब इसको ज़रा ओपन कर लीजिए मज़ीद, तो ए रेज़ पावर 4 2a स्क्वेयर बी स्क्वेयर बी रेज़ पावर 4 बन गया. ये आपके पास ए रेज़ पावर 4 माइनस 2a स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस बी रेज़ पावर 4 बन गया और ये आपके पास 4a स्क्वेयर बी स्क्वेयर है. लेफ्ट हैंड साइड को तो हम एज इट इज़ लिख देते हैं 2a स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस बी की पावर 4. राइट हैंड साइड में अगर आप देखें तो ये सेम टर्म्स हैं विद डिफरेंट साइंस, तो इनको लाइक टर्म्स हैं, इनको सॉल्व कर लीजिए. तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस 2a स्क्वेयर बी स्क्वेयर एंड बी की पावर 4. सो इफ़ यू सी लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो ये जो तीन मेजरमेंट्स हमारे पास उसने शुरू में हमें कही थी कि वेरीफाई करें क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करती हैं या नहीं. तो सिंस इट हैज़ वेरीफाइड द पाइथागोरस थ्योरम, सो दिस मीन्स ये जो तीनों मेजरमेंट्स हैं these are the measurements of the side of a right angle triangle. Let's move forward towards next question, that is question number 3. Question number 3, the three sides of a triangle are of measure 8, x and 17.
For what value of x will it become the base of right angle triangle? So यहाँ पे हमारे पास 3 मेजरमेंट्स कौन सी हैं, एक 8 है, एक x है, एक 17 है। उसने कहा है x की कौन सी वैल्यू के लिए x जो है वो बेस कंसिडर की जाएगी। एंड सिंस दे हैव मेंशन राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर हम अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम विच इज़ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारे पास 8x और 17 में से हाइपोटेन्यूज कौन सा है विच इज़ द लॉन्गेस्ट साइड। x के बारे में तो उसने खुद बता दिया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इट विल बिकम बेस, सो x इज़ कंसिडर्ड एज बेस। तो 8 और 17 में से अब लॉन्गेस्ट साइड ऑब्वियसली 17 है, तो 17 इज़ कंसिडर्ड टू बी एज हाइपोटेन्यूज। अब ये 3 वैल्यूज़ इस पाइथागोरस थ्योरम में इंसर्ट कर देते हैं और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सो 17 is the hypotenuse, the longest side, base is x and perpendicular is 8 का स्क्वायर। अब जिस कैलकुलेशन हैं इसको सॉल्व कर लीजिए। 17 स्क्वायर इज़ 289, x स्क्वायर इज़ रिमेन x, 8 स्क्वायर इज़ 64। So 289 minus 64 equals to x square and it will become 225 equals to x square. So this implies that x square is equals to 225. So if you take square root on both sides, so x is equal to 15. It will become plus minus 15. So since we are dealing with the measurements and measurements are always taken as positive, so x is equal to 15. This is the answer. ठीक है, और अगर आप देख लें तो हमारे पास एक लेंथ 8 बन जाती है, बेस जो है 15 बन जाती है और ये हाइपोटेन्यूज हमारे पास रिमेन द लॉन्गेस्ट साइड विच इज़ 17, राइट। तो जब भी आपको 3 मेजरमेंट्स गिवन होंगी, आपने सबसे पहले सिंस राइट एंगल ट्राइंगल का जिक्र होगा, तो हमने उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। फॉर दैट वी मस्ट हैव हाइपोटेन्यूज विच इज़ द लॉन्गेस्ट साइड। नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4. In question number 4, in an isosceles triangle, the base measure BC is equal to 28 centimeter. The other two sides measure 50 centimeter. If AD is perpendicular to BC, then find these two things. So first of all, we are going to draw an isosceles triangle. Isosceles triangle वो triangle होता है जिसमें दो sides की measurement same एक जैसी होती है। उसने कहा है खुद बेस BC है, तो हम यहाँ पे बेस BC ले लेते हैं और ये ट्राइंगल यहाँ पे इसका कॉर्नर एंगल A हो जाएगा, ABC। फिर उसने कहा है जो साइड BC है उसकी मेजरमेंट कितनी है, 28 सेंटीमीटर, और जो रिमेनिंग टू साइड्स हैं AB उसकी मेजरमेंट 50 सेंटीमीटर है और AC की भी मेजरमेंट क्या है, 50 सेंटीमीटर है, सिंस इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर उसने कहा कि इफ़ AD इज़ परपेंडिकुलर टू BC, तो हम AD ड्रॉ कर लेते हैं विच इज़ परपेंडिकुलर टू BC। इसको यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। सो ये आपके पास क्या आ जाएगा, AD। इट इज़ परपेंडिकुलर का मतलब है यहाँ पे आपके पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, राइट। सो AD इज़ परपेंडिकुलर टू BC, देन फाइंड द लेंथ ऑफ AD। AD पहले हमने ये वाली लेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब अगर आप देखें ADB या ADC जो आप देखें तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। सो इफ़ इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, सो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम ऑन इट, राइट, ताकि हम AD की लेंथ फाइंड आउट कर सकें। तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हम कंसिडर करते हैं ट्राइंगल को, कौन सा ट्राइंगल कंसिडर करें, दोनों में से कोई सा भी कर लें, दैट इज़ वन एंड द सेम थिंग। लेट्स से ट्राइंगल कंसिडर करें ADB। अगर ADB कंसिडर करें तो हमारे पास ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके ऑपोजिट जो साइड है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है विच इज़ दी हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे आ जाएगा दैट इज़ AB का स्क्वायर। दूसरा हमारे पास बेस क्या बनती है, BD, और परपेंडिकुलर हमारे पास आ जाएगा AD जो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। सिंस दिस आर साइड्स, तो हम यहाँ पे इसके ऊपर लिख लेते हैं। अच्छा, AB की लेंथ हमारे पास क्या बनती है, 50, वो इंसर्ट कर लें। अच्छा, अब BD जो है, हमें तो BC की लेंथ गिवन है, BD की लेंथ तो हमारे पास मौजूद ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास हमें ये पता है कि AD इज़ परपेंडिकुलर टू BC और दोनों साइड्स की जो लेंथ है वो हमारे पास 50 और 50 है। हमने ये थ्योरम पढ़ा हुआ है कि अगर दोनों साइड की मेजरमेंट्स जो है वो लाइन सेगमेंट एक पॉइंट दोनों साइड से इक्वल फासले पे, इसका मतलब है वो उसके राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। इसका मतलब है यहाँ पे हमने
जो डी पॉइंट है ये उसके राइट बाइसेक्टर पे है, सो 28 का हम हाफ लेंगे विच इज़ गोइंग टू बी 14, विच इज़ द लेंथ ऑफ साइड बी डी, राइट। सो यहाँ पे सिर्फ इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि पूरा 28 नहीं लेना, उसका हाफ कर लेना है क्योंकि वो उसके राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। और ये आपके पास ए डी चूँकि फाइंड करना है तो वो एज इट इज़ रहेगा। अब आपने जस्ट इसकी कैलकुलेशंस करनी है विच इज़ दिस। सो आपके पास ए डी की जो मेजरमेंट है 2500 माइनस 196 ए डी का स्क्वायर, सो ए डी इज इक्वल टू 2304, राइट। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें तो ए डी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी दैट इज़ 48 सेंटीमीटर, राइट। सो ये ए डी फाइंड कर लिया। सेकेंड पार्ट में आपके पास क्या है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। सो अगर हम इधर ही इसको फाइंड करते हैं, सेकेंड पार्ट में एरिया फाइंड करना है इसी ट्राइंगल का। एरिया के बाद हमारे पास क्या होता है फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, अगर आप देखें हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब पूरे ट्राइंगल की बात हो रही है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ तो हाफ रहेगा, बेस में अब पूरा ट्राइंगल का है एरिया तो बेस पूरी साइड बी सी यूज़ करेंगे और अब हम पूरा 28 यूज़ करेंगे। और हाइट जो है वो ए डी कंसिडर की जा रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो ए डी हम फाइंड आउट करके आए हैं तो वो आपने 48 लगा लिया, राइट। सो हाफ सॉरी इसको जब आप जस्ट सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 672 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। सो वी हैव अप्लाइड पाइथागोरस थ्योरम ऑन दिस क्वेश्चन। सो पूरा ट्राइंगल आइसोसेलेस था, हमने उसको राइट बाइसेक्टर बना के राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट किया सो दैट वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। और फिर हमने अननोन साइड्स और एरिया जो उसने कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। होप यू अंडरस्टैंड दिस सम। लेट्स मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। In question number 5, in a quadrilateral ABCD, quadrilateral is a four-sided figure. So we have drawn a quadrilateral which is A, B, C and D. फिर उसके बाद उसने कहा था डायगोनल ए सी एंड बी डी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डायगोनल्स क्या होती हैं, जो ऑपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइन करती हैं। सो ए सी एक डायगोनल होगी और बी डी आपके पास जो है वो दूसरी डायगोनल होगी, राइट। ये दोनों डायगोनल्स के आपस में परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं, दिस मीन्स यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा, ठीक है। और जहाँ पे ये मीट अप करिए हम उस पॉइंट को ओ कह देते हैं। सो गिवन आपके पास क्या है, गिवन में लेट्स राइट इट डाउन, quadrilateral, in a quadrilateral ए बी सी डी, और हमने क्या बताया हुआ है, डायगोनल्स जो हैं ए सी इज़ परपेंडिकुलर टू बी डी, ये हमारे पास उसने बता दिया है और वही हमने ड्रॉ भी कर लिया। अब हम क्या करते हैं, हम इन साइड्स को नेम दे देते हैं ताकि ये पूरी साइड्स हमें बार बार ना लिखनी पड़े। सो ओ ए को हम दे देते हैं मेजर ओ ए इज़ इक्वल टू पी, measure OB is equal to M, measure OC equals to L, measure OD equals to N, right? So OA P लिया हमने, OB हमने M लिया है, OC हमने L लिया है और OD हमने N ले लिया, right? अब अगर आप देखें ये चार ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं और ये चारों ट्राइंगल्स उनसे हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। सो राइट एंगल ट्राइंगल पे हम पाइथागोरस थ्योरम बारी बारी अप्लाई कर देते हैं। लेट्स फर्स्ट कंसिडर ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है। अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ येलो कलर से तो आपके पास ट्राइंगल है ए ओ बी, ठीक है। सो यू कैन क्लियरली सी इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई कर देते हैं। सो ए ओ बी में 90 डिग्री का एंगल ये बन रहा है तो ये जो है वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, आई होप यू रिमेंबर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर।
सो यहाँ से आ जाएगा मेजर ए बी का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, सो एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब दूसरा ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, ट्राइंगल बी ओ सी। तो ये भी आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें 90 डिग्री का एंगल ये है, तो ये इसके क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। सो मेजर बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ अदर टू साइड, सो एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट हम कंसिडर करते हैं तीसरा ट्राइंगल विच इज़ सी ओ डी। सी ओ डी में यहाँ पे 90 का एंगल है, तो ये इसके ऑपोजिट साइड जो कि आपके पास हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। तो मेजर सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू मेजर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। अदर टू साइड कौन सी बन रही है, एक एल स्क्वायर और दूसरी एन स्क्वायर बन रही है। सो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। फोर्थ, द लास्ट ट्राइंगल विच इज़ ए ओ डी। सो इन ट्राइंगल ए ओ डी अगर आप देखें तो 90 का एंगल ये है, तो इसके ऑपोजिट साइड ए डी बन रही है। तो मेजर ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज के इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर आ जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अदर टू साइड्स ये बन जाती हैं, ठीक है। अब हम इक्वेशंस को ऐड करते हैं। अब हम सिंस वी हैव टू प्रूव दिस, सो इसी तरह से हम इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं कि ए बी और सी डी हमारे पास आ जाए, ठीक है। सो ए बी और सी डी मीन्स हमने 1 और 3 को ऐड करना है। सो हम लिखते हैं एडिंग 1 and 3, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। सो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी। दिस मीन्स मेजर ए बी का स्क्वायर प्लस मेजर सी डी का स्क्वायर आ जाएगा। और राइट हैंड साइड में ऐड कर देते हैं, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। सिमिलरली दूसरी साइड पे हम क्या करते हैं, एडिंग इक्वेशन 2 and 4। 2 और 4 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, मेजर बी सी का स्क्वायर प्लस मेजर ए डी का स्क्वायर, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस में राइट हैंड साइड दोनों की सेम है। सो अगर किसी इक्वेशन की कंपैरिजन करें, राइट हैंड साइड सेम हो, तो दिस मीन्स लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी। सो इस डिडक्शन से हम लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट द टू लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल नाउ। सो हमारे पास मेजर ए बी का स्क्वायर प्लस मेजर सी डी का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू मेजर बी सी का स्क्वायर प्लस मेजर ए डी का स्क्वायर। सो यही हमने प्रूव करना था। सो हमने ड्रॉ तो हमने क्वाड्रिलेटरल किया था, लेकिन उस क्वाड्रिलेटरल को हमने 4 राइट एंगल ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया ताकि हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकें। और फिर हमने इक्वेशंस को यूज़ करते हुए ये जो फाइंड आउट करना था वो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड द सम। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।